Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3, subject SS. We are going to start with a new chapter, chapter number 2, our planet Earth. And this is my session number 1 for this chapter. So kids, you already know, right? Since this is the first session of this chapter, how are we going to start the chapter? Yes, vocabulary words. We are going to start the chapter by knowing the meanings of difficult words in this chapter. इस चैप्टर में जितने भी difficult words हैं, उनको हम पहले सीखेंगे. And then we will start the chapter. So before we start, let's have a quick look at the vocabulary words, that is through PPT. Right kids? You enjoy seeing the PPT because I share different pictures in the PPT which will help you to understand the word better. So let's start the PPT. Chapter number 2, our planet Earth. First word, essential. Essential means completely necessary. Completely necessary. बहुत ज़रूरी जो होता है उसे हम essential कहते हैं. In the picture, you can see that something is been written. But for writing, you need either pencil or pen. Plus, you also need a paper. So you need some surface on which you can write. And you need a thing from which you have to write. Correct? So if you don't have a pen or a pencil, will you be able to write? No. So, pen or the pencil are the essential things for writing. Let's take one more example. For cooking, can you cook without water? No, you cannot cook without water. Correct? So, water is essential for cooking. Same way, essential means, for example, water is also essential for bathing. Without water, can you take a bath? No, it is not possible. So, essential means completely necessary. Okay, I hope you have understood the meaning of word essential. Next one, layer. Layer means a thickness or quantity of something that is on something else or between other things. See in the picture, you can see different layers in the sandwich. ये एक सैंडविच की पिक्चर है. इसमें आपको अलग अलग लेयर्स दिखेंगे. फर्स्ट लेयर जो नीचे है वो ब्रेड का है. On that you have some latex. Then you have a layer of cheese. Then tomatoes. Then another layer of bread. Correct? So these are the different layers. Means it is the thickness of something that is on something else. किसी और चीज़ के ऊपर कोई और चीज़ लगी हुई है तो उसे हम कहते हैं layers. क्या कहते हैं? Layers. Okay? I hope you have understood. Next, explorer. Explorer means a person who travels around a place in order to learn about it. A person who travels around a place in order to learn about it. In the picture you can see a person. He is standing along with a bag and a camera. Correct? So that means he is going to capture the photograph of the place. So now
he looks like he is eager to know about the place. इस इंसान को देखकर आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो इस जगह पर पहली बार आया है, इस जगह के बारे में नई नई जानकारी चाहता है. एंड दैट इज व्हाई ही इज हैविंग अ कैमरा, ही इज हैविंग अ बैग. कैमरा में वो पिक्चर्स कैप्चर करेगा, बैग में शायद उसके पास बुक है तो उसमें सारी चीज़ों को नोट डाउन करेगा कि उसने क्या देखा, किस टाइप का था, कितनी दूर पर था. करेक्ट. तो सच पर्सन हु ट्रेवल्स अराउंड अ प्लेस मीन्स अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं. क्यों घूमते हैं? टू लर्न अबाउट इट, उस जगह के बारे में सीखने के लिए. So such person is called an explorer. What is he called? A explorer. Okay. Next word, spherical. Spherical means round like a ball. Round like a ball. In the picture you can see a ball. दिख रहा है ना ball? So do you think it is just a drawing of a ball? No. अगर ड्राइंग है तो फ्लैट सरफेस के ऊपर सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ करके रख देते हैं. बट स्फीयरिकल किसे कहते हैं? जो एक हार्ड चीज होती है जिसको आप टच कर सकते हो फ्रॉम ऑल द साइड्स. अगर आप पिक्चर सिर्फ सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो प्लेन सरफेस के ऊपर होता है. बट अगर आपके पास फुटबॉल है घर पे या क्रिकेट का बॉल है तो उसे स्फीयरिकल कहते हैं क्योंकि उसे आप कंप्लीटली टच कर सकते हो ऑल द साइड्स. सो दैट इज स्फीयरिकल. जो पेपर के ऊपर ड्राइंग होता है ना किड्स, उसे राउंड या सर्कल कहते हैं. स्फीयरिकल कैसे कहते हैं कि वो राउंड तो होता है बट उसकी सारी साइड्स भी आप टच कर सकते हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्फीयरिकल. क्या? स्फीयरिकल मीन्स राउंड लाइक अ बॉल. नेक्स्ट, बल्जिंग. बल्जिंग means sticking out from something that is round in shape. Sticking out from something that is round in shape. For example, in the picture you can see the globe, right? Globe दिख रहा है? Yes. इस ग्लोब के दोनों तरफ लाइट ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा कुछ शेड. वो क्या है? ग्लोब राउंड है मगर ये लाइट ब्लू कलर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हमारा जो अर्थ है ना ग्लोब, वो इसी तरह साइड में से थोड़ा फूला हुआ है, थोड़ा फूला हुआ. सी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिर में कहीं लग जाता है तो कभी कभी आपको यहाँ पर सिर पर फोरहेड के ऊपर बॉयल निकल आता है ना, दैट इज बल्जिंग. स्वेलिंग भी कहते हैं. बट ये अर्थ के सरफेस के ऊपर दोनों तरफ है इसलिए इसे बल्जिंग कहते हैं. करेक्ट. साइड में देखो राउंड से थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा है तो उसे बल्जिंग कहते हैं. स्टिकिंग आउट फ्रॉम समथिंग दैट इज राउंड इन शेप. अर्थ जो है हमारा ग्लोब वो राउंड है बट साइड में से दोनों तरफ से बल्जिंग है, फूला हुआ है. क्लियर किड्स? नेक्स्ट, फ्लैटेंड. फ्लैटेंड means to become or make something flat. एकदम फ्लैट, चपटा कर देना, उसे फ्लैटेंड कहते हैं. इन द प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि अर्थ में दोनों तरफ से बल्जिंग है. यहाँ इस ग्लोब में आप देख सकते हो कि दोनों तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा फूला हुआ दिख रहा है आपको. करेक्ट. राउंड शेप में नहीं दिख रहा है ग्लोब, थोड़ा सा ओवल दिख रहा है. क्यों? क्योंकि दोनों तरफ में बल्जिंग है. बट फ्लैटेंड का मतलब क्या है? सी इन दिस ग्लोब, ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ थोड़ा स्लाइट फ्लैट दिख रहा है.
फ्लैट सरफेस राउंड नहीं है, देखो स्ट्रेट जैसा थोड़ा दिख रहा है, एग्जैक्ट राउंड जैसा नहीं दिख रहा है, तो उसे हम कहते हैं फ्लैटेंड। क्या कहते हैं? फ्लैटेंड। क्लियर किड्स? आपकी मम्मी जब रोटी बनाती है तब उस रोटी का जो डो होता है, करेक्ट, उसको पहले राउंड राउंड करती है मम्मी, दोनों हाथ के बीच में रख के राउंड राउंड गोल गोल घुमाती है, फिर उसे दोनों तरफ से प्रेस कर देती है, तो वो क्या करती है? फ्लैटन कर देती है, थोड़ा प्रेस करके फ्लैटन कर देती है, तब वो ऊपर से और नीचे से प्रेस होके फ्लैट हो जाता है। सो ऐसे ही हमारा अर्थ जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर एंड स्लाइटली नीचे की तरफ फ्लैटेंड है। क्लियर? When we go through the chapter, you will be getting to know about this more. जब हम चैप्टर के तरफ बढ़ेंगे, चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन का आप देखोगे, उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके किड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। आउटर। आउटर मीन्स on the outside of something. On the outside of something. यहाँ पर मैंने आपके चैप्टर के रिलेटेड पिक्चर शेयर की है। अर्थ जो है हमारा वो आउटर सरफेस आपको एक तरफ दिख रहा है कि जो हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ आपको जो येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल एंड ग्रीन लाइंस दिख रही है ना, वो अर्थ के अंदर के जो है वो लेयर्स हैं। अर्थ के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होते हैं किड्स, बट हमें जो आउटर सरफेस दिख रहा है, मगर दैट इज बाहर का सरफेस, वो आपको इस पिक्चर में एक तरफ दिख रहा है एंड इनर पार्ट जो है वो दूसरी तरफ दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब सैंडविच खाते हो तो उस सैंडविच में आउटर पार्ट में आपको क्या दिखता है? सिर्फ ब्रेड दिखती है, बट इनर पार्ट में क्या दिखता है? यस, you have mashed potatoes or vegetables, cheese, etc. right? तो वो inner part है, outer part क्या है? Only bread. So that is outer, means on the outside of something. Clear kids? Next is oceans. Oceans means the mass of salt water that covers most of the surface of the land. Once again, the mass of salt water that covers most of the surface of the land. यहाँ पर मैंने आपके साथ जो पिक्चर शेयर की है ना, उसमें आप देख सकते हो कि ये एक वर्ल्ड का मैप है, पूरी दुनिया का। इस मैप के अंदर ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है ना, वो सारे के सारे वाटर बॉडीज है, मतलब कि यहाँ पर पानी है। ब्लू कलर का जितना पार्ट दिख रहा है ना, वहाँ सिर्फ पानी है। तो ये पानी सॉल्ट वाटर है। क्या है? सॉल्ट वाटर, खारा पानी है। आप भी कभी कभी बीच पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो वाटर भी सॉल्टी वाटर होता है। तो ऐसे बड़े बड़े सॉल्ट वाटर के जो पोर्शंस है ना हमारी दुनिया में, इसको हम कहते हैं ओशियंस। क्या कहते हैं? ओशियंस। इन द पिक्चर यू कैन सी, हम सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, आर्कटिक ओशियन, देन यू हैव अटलांटिक ओशियन, देन पैसिफिक ओशियन। आप दोनों तरफ देख सकते हो, पैसिफिक ओशियन को दोनों साइड देख सकते हो। देन इंडियन ओशन, एंड सबसे नीचे जो है वो है सदर्न ओशन। तो ये सारे सॉल्ट वाटर बॉडीज हैं हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर। क्लियर किड्स? सो दे आर ऑल द ओशंस। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंट्स। Next is continents. That is large area of land on the surface of the earth. अर्थ के सरफेस के ऊपर जो लार्ज एरिया है लैंड के, करेक्ट? अर्थ के सरफेस के ऊपर लैंड एरिया एंड वाटर बॉडीज हैं।
तो ये लैंड एरिया में जो बड़े बड़े लैंड एरियाज है ना, उन्हें हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स। जो आप पिक्चर देख रहे हो उसमें जो कलर्ड पोर्शन है, ब्लू कलर वाला नहीं, बाकी के कलर्स जो हैं वो लैंड एरिया है। सी लाइट ग्रीन, लेफ्ट हैंड साइड में लाइट ग्रीन जो दिख रहा है वो है नॉर्थ अमेरिका। देन यू हैव पिंक कलर, करेक्ट, दैट इज साउथ अमेरिका। पर्पल कलर इज यूरोप, येलो कलर इज अफ्रीका, देन ऑरेंज कलर इज एशिया, डार्क ग्रीन इज ऑस्ट्रेलिया एंड नीचे वाइट कलर का इट इज एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका। सो ये सारे बिग बिग लैंड मासेस हैं, बिग बिग लैंड मासेस। जैसे बिग वाटर बॉडीज को हमने ओशियंस का नाम दिया है ना, उसी तरह बिग लैंड मासेस को कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और ये ब्लू के सिवाय जितने भी कलर्स के आप दिख रहे हैं ना, ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स है। क्या है? कॉन्टिनेंट्स। क्लियर किड्स? Next one, atmosphere. Atmosphere. So what do you mean by atmosphere, kids? The mixture of gases that surrounds the earth. The mixture of gases that surrounds the earth. Kids, हमारी जो दुनिया है, हमारा अर्थ, उसके आजू बाजू में चारों तरफ जो है वो एक गैसेस का बना पूरा एक लेयर है। जैसे सैंडविच जो है उसमें बीच में मसाला है, मगर उसके चारों तरफ लेयर होती है ब्रेड की। तो उसी तरह हमारे अर्थ जो है उसमें भी लेयर है। आप बटाटा वड़ा जानते हो ना? यस। तो उस बटाटा वड़ा में अंदर जो है वो मैश्ड पोटैटोज होते हैं, बट उसके चारों तरफ भी एक लेयर लगी हुई होती है। यस, आटे की लेयर है ना, चने का घोल होता है। यस। तो उसी तरह हमारा अर्थ जो है वो बटाटा वड़ा की तरह बीच में जो है वो अर्थ है, उसके सराउंडिंग में गैस से बना हुआ एक पूरा लेयर होता है। यहाँ आप देख सकते हो ग्रीन कलर का पूरा गैस से बना एक लेयर, करेक्ट? तो ये इस लेयर को हम क्या कहते हैं किड्स? एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ओके, सो एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। ओके, so here we come to the end of this PPT. Now let's move on to the general video lecture. Okay kids, I hope you all understood the meanings of those words which I shared you through PPT. Correct? समझ में आ गए? So इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड वोकैबुलरी थ्रू PPT, ये दो पार्ट्स हमने कर दिए हैं। करेक्ट? PPT में जितने भी वर्ड्स मैंने आपको दिखाए वो सारे वर्ड्स इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। So when we read the chapter, you will be understanding what I mean to say. जब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी तो ये वर्ड आएगा, तो अब आपके समझ में आ जाएगा ना कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बल्जिंग का मीनिंग क्या होता है, फ्लैटेंड का मीनिंग क्या होता है। करेक्ट? So now let's start this. Our planet Earth. The Earth is the only planet in the solar system known to have life on it. Earth एक ऐसा planet है, हमारी सोलर सिस्टम में कितने planets हैं? 8 planets. करेक्ट? तो इन 8 planets में से एक Earth ही ऐसा planet है जिसके ऊपर life means living things exist. बाकी के planets के ऊपर living things नहीं है। क्यों नहीं है? Can anybody think of it? सोचो सोचो, क्यों नहीं होगा? Yes, because अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स जो है वो अर्थ के ऊपर रह सकते हैं, बाकी प्लैनेट्स के ऊपर नहीं रह सकते। राइट? फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि अर्थ की जो पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पर आता है ना अर्थ,
Can anyone remember that? Sun के बाद next Mercury, Venus, then Earth, right? So ज्यादा नजदीक रहेंगे तो बहुत गर्म होगा, ज्यादा दूर हो जाएगा अर्थ अगर तो बहुत ठंडा हो जाएगा. बट अर्थ की पोजीशन राइट पोजीशन है, राइट टेम्परेचर मिलता है जो हमें सपोर्ट करता है. बहुत ठंडा भी नहीं, बहुत गर्मी भी नहीं. हाँ ठंडी होती है बट वी कैन बेयर इट, राइट? हम सह लेते हैं. गर्म कपड़े पहनकर सहन हो सकती है. अगर उससे भी ज्यादा ठंडा हो जाए तो क्या हम रह पाएंगे? नो, इट विल बी डिफिकल्ट. और बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो रह पाएंगे? नो, तब भी नहीं रह पाएंगे. बट अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइट टेम्परेचर है. सो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट टू हैव लाइफ ऑन इट. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लिविंग थिंग्स. विच आर द लिविंग थिंग्स? प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स and of course human beings. some सारे living things यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं. we can live on this planet. Next, it has various natural resources such as air, water and sunlight which are essential for survival of living things. Essential means completely necessary, बहुत जरूरी है. तो अर्थ के ऊपर हमें एयर मिल जाती है जिसको हम ब्रीथ कर सकते हैं. गर्मी भी नहीं लगती है एयर की वजह से. एयर को देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं, राइट? सो एयर इज देयर ऑन द अर्थ. देन वी हैव वाटर ऑन अर्थ. वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वाटरिंग प्लांट्स, क्लीनिंग. इन सारी चीजों के लिए वाटर इज वेरी एसेंशियल. सो वाटर इज ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ. Then we have sunlight on the earth. जो बहुत दूर वाले प्लैनेट्स है, फॉर एग्जाम्पल नेपच्यून या यूरेनस, तो ये सारे इतने दूर है कि वहां सनलाइट बहुत कम पहुंचती है. बट फॉर लिविंग थिंग्स सनलाइट इज वेरी नेसेसरी. वी आर ह्यूमन बींग्स. वी नीड एनर्जी टू लिव. वी नीड समथिंग टू ईट. तो हम प्लांट्स को खाते हैं, राइट? अलग अलग वेजिटेबल्स को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं. तो इन वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए ना. अगर वाटर नहीं होगा तो ये सारी चीजें ग्रो होंगी नहीं होंगी. अगर ये ग्रो नहीं होंगी तो क्या हम खा पाएंगे कुछ भी? हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा और खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे. इसीलिए सनलाइट भी जरूरी है. सनलाइट से हमें हीट भी मिलती है, गर्मी. अगर बहुत ठंडी रहती है, आप सिर्फ सोचो कि अगर साल में आई थिंक दिसंबर, जनवरी 2 मंथ्स होते हैं जो एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं. अगर पूरा साल ऐसे ही कोल्ड रहा तो आपको मजा आएगा? नो, यू विल नॉट एंजॉय. गर्मी भी जरूरी है. हीट इज ऑल्सो नेसेसरी, करेक्ट? सो सनलाइट गिव्स यू दैट हीट. सो एसेंशियल थिंग्स दैट सपोर्ट लाइफ आर एयर, वाटर एंड सनलाइट. तो ये एयर, वाटर एंड सनलाइट प्लांट्स के लिए भी जरूरी है ना. आपने साइंस में सीखा होगा, राइट? यस. सो बीइंग द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, द अर्थ गेट्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. सो अर्थ जो है वो सन से थर्ड पोजीशन पर आता है. सन के बाद जो प्लैनेट्स है उसमें थर्ड नंबर पर पोजीशन वाइज अर्थ आता है. सो दैट इज द राइट पोजीशन. इसीलिए सन की करेक्ट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट हमें मिलती रहती है. सो दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर एनी लिविंग थिंग्स टू लिव ऑन अर्थ. तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं किड्स. आज के सेशन में मैंने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने वोकैबुलरी सीखी, देन एसेंशियल थिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ. लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी चीजें सपोर्ट करती है इसके बारे में भी हमने सीखा. कौन कौन सी चीजें थी? एयर, वाटर एंड सनलाइट. क्लियर किड्स? नाउ नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द atmosphere, Earth's atmosphere, shape of the earth, all these things we will learn in the next session. आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं. Okay? I'm sending a
PDF, which is your homework. Please read the instruction properly and do your homework with good handwriting and no spelling mistake. And if you have liked this video, please click on the like icon. See you in the next session, kids. Bye.